रिप्रेजेंट करता है, थर्मल स्ट्रेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा डेल्टा टी ई, ठीक है। अब देखो इफ टेम्परेचर वैसे नहीं लग करते हैं, थर्मल डेफिनेटली सही बात है, थर्मल डेफिनेटली सही बात है, थर्मल स्ट्रेस टेम्परेचर के अल्फा डेल्टा टी ई गड़बड़ है, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस एक्सपेंशन, ये देखिए in case when the bar having in case of the bar having less coefficient of thermal resistance will have potential stress and bar having more of thermal will have more potential stress, सही बात है। if the temperature increase the nature of thermal resistance compression, सही बात है। if the temperature decrease the nature of thermal resistance tensile, in the case combined measure having more thermal resistance option and less thermal resistance will have tensile। देखो a bar of 1 meter having diameter 15 mm 322 initial tensile stress 10 mm temperature 10 degrees to find the stress reduced in the bar temperature rise equal to negative plus alpha equal to 10 bar। देखो थर्मा ये होगा ऑल टेंसाइल तो नेट फोर्स कितना 0 हो जाएगा। अब ये देखो स्ट्रेस शियर स्ट्रेस इन बीम एफ ए वाई बार अपॉन आई बी मटेरियल्स टू होमोजेनस आइसोट्रोपिक और स्ट्रेस कांस्टेंट अलोंग द विड्थ और फॉर ऑल स्ट्रेस पैराबोलिक जीप हो गया। अभी देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन स्क्वायर सेक्शन प्लेस्ड विद डायगोनल हॉरिजॉन्टल, ये कितना होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन स्क्वायर वन प्लेस्ड विद डायगोनल हॉरिजॉन्टल 9.8 टाइम्स एवरेज /2 1.5 टाइम टी एवरेज इस बार /2 टी में इक्वल टू 4/3 टाउ एवरेज, टी में इक्वल टू 9/8 टी एवरेज। शियर स्ट्रेस for rectangular section under the action of shear force S, the rectangular section is B into D, rectangular C is equal to TS upon 3/2. Next ratio of maximum shear stress to average shear for circular and 4/3. Slope and deflection. M by I is equal to E by R, ये सबसे मेन है। M by कर्व चलते सीधा bending को सिद्ध m by r equal to sigma by y upon bending को m by r sigma by y by r e I d square y upon dx square d e I d square y by dx square bending में करते हैं y dy by dx कर्वेचर 1 by r d square by dy और m by e is equal to d square y by dx और bending में e है dq upon y by dx d for y upon shear for d e I dq y upon dx rate of load e I d for y upon dx boundary condition because only symmetric load at support y is governed with the reaction theta is equal to and delivered and deflection at support y is equal to the deflection is in case of symmetrical loading condition point of maximum deflection point of zero slope is method of determination of slope of deflection proper integration 1 by r d square y on d square sigma by y is equal to m by I equal to e by r m by e I to 1 by r m by e I equal to 1 by I r m by e is equal to d square y upon s upon rate of loading double integration method rate of loading w is equal to e I d 4 by dr moment d e I d square y upon d e I dq y upon d double integration calculate mx is e I d square y by dx square और e I dy by dx double integration used for prismatic beam having e and I constant इक्वेशन ऑफ बेंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ होगा, ठीक है। ये हो जाएगा e I d स्क्वायर बाई u हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ काम करना है एरिया मोमेंट थीटा बी माइनस थीटा 1/e I एरिया ऑफ BMT बिटवीन थीटा और वो सिंस थीटा बी इक्वल टू w स्क्वायर एरिया मोमेंट w y b माइनस y a टू e 1/e I मोमेंट ऑफ एरिया बिटवीन BMT हो गया माइनस WL के ऊपर से एरिया मोमेंट ऑलवेज सेलेक्ट द 2 पॉइंट्स सच दैट वन पॉइंट शुड बी नेट जीरो स्लोप दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट और another point should be zero square point from original expert from non-slope strain energy u m square L upon 2 e I m d अब y भी इक्वल टू डेल्टा u by डेल्टा p ये हो जाएगा strain energy method m इक्वल टू माइनस bx strain energy method if deflection is required at a section where there is no point where then we have to apply an imaginary load in the area in this case deflection will be equal to partial derivative of the total strain energy total imaginary load and final solution imaginary load will be substituted zero ये होगा WL4/80 strain energy में slope of n partial derivative of total strain energy with respect to constant load delta theta b equal to delta u upon delta m upon e I method of determination of slope and deflection m upon e theorem the slope at n given beam is equal to shear force at the point in the conjugate beam it means SFD is conjugate with slope
द डिफरेंस एट एनी पॉइंट इन द गिवन इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट इन कंजुगेट बीम, इट मींस BMD हो जाएगा। गाइडलाइंस टू ड्रॉ कंजुगेट बीम, द इंड कंडीशन ऑफ द कंजुगेट बीम, इन केस ऑफ द कंजुगेट बीम विल हैव स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वो हो गया स्लोप एंड डिफ्लेक्शन विल बी प्रेजेंट बाय सोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट कंजुगेट बीम, यही वो हो गया। M/E1 gives the free loading of the conjugate beam. Currently, M/EI is positive, sagging, then our load and conjugate. If the surface economy is positive, the slope and the beam will be negative. If the bending moment is contract positive, then deflection will be negative. The real beam here conjugating. If it means hinge support will become roller or hinge over support will be. It means the fixed end will become free and a free end will become real beam. देख लो ये रहा इंटरनल हिंज और रोलर कंजुगेट बीम ये रहा। जो स्लोप ड्यू टू कैंटिलीवर बीम ये क्या हो जाएगा, स्लोप की कैंटिलीवर पॉइंट लोड फ्री WL²/2I। ठीक है, देखो WL²/2I, WL3/3I, WL3/6I, WL4/8I होगा। डिफ्लेक्शन ड्यू टू अनयूनिफॉर्मली वेरिंग लोड विद फ्री एंड रोलर WL4/33I। स्लोप ML/EI, ML²/2I, WL3/24I, WL4/30I। डिफ्लेक्शन ड्यू टू UDL इन a simply supported beam at mid span 5 WL4/384EI। ठीक है, अब देखो थीटा A थीटा B WL²/16I, WL3/48I, WL3/44EI, 5 WL4/384EI। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अक्यूर्ड एट maximum deflection at period left upon consider moment m at L/√3 हो जाएगा। यही ML/6EI सुपर में और उधर ML/9 के ऊपर ML/3I WAB at +36LI WA²LB²3I WABL+1। Slope at the support in case of simply supported beam having concentrated movement at mid span is equal to ML/24EI, theta A plus theta B ML/24 ML/4EI W. Oscillated load at the mid span of the beam, the maximum deflection is equal to 1/4 deflection of simply supported beam. Superposition load 1/4 W simply supported WA4 WLQ/48I WLQ/180 WAQ/BQ/3I. If the UDL load act on a fixed beam, then maximum deflection is equal to 1/5 deflection of simply supported beam. सुपरपोजिशन थ्योरम y में इक्वल टू देखो फिक्स्ड में 1/5 वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कॉलम देख लो, कॉलम स्टार्ट हैविंग स्ट्रेस नंबर कंप्रेशन नंबर। ठीक है, द मेंबर इज वर्टिकल एंड बोथ यूनिट्स आर फिक्स्ड व्हाइल सब्जेक्ट टू एक्सियल कंप्रेशन। उन्होंने कॉलम बोलते द मेंबर ऑफ सर्कल इज नॉट वर्टिकल और दे आर हिंज्ड टू पिन एंड द बार कॉलम स्टार्ट होता है। पहले कॉलम देख लो, क्रसिंग हो गया, बकलिंग और क्रसिंग बकलिंग। क्रसिंग मतलब क्या, नॉर्मली ऑक्यूर्स इन द शॉर्ट कॉलम ड्यू टू डायरेक्ट बकलिंग मतलब लॉन्ग कॉलम होता है, ड्यू टू कंबाइंड विद ऑब्जर्व इन केस ऑफ प्रिमिटिव कॉलम टू कंबाइंड कंप्रेसिव बकलिंग। एजम्पशन देख लो, एसोट्रोपिक होमोजेनस नॉट ड्यूनेटिक शुड बी हुक्स लॉ प्लेन रिमेंस प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बकलिंग लॉन्ग कॉलम π²EI अपॉन L का पावर स्क्वायर। ये क्या होता है, बकलिंग क्रिटिकल यूलर तीनों के लिए बकलिंग लोड क्रिटिकल लोड फिटिंग लोड और फेलर लोड और बेंडिंग लोड। ये कहता है π²EI अपॉन L² हो जाएगा। IX/Y प्री क्लिपिंग मतलब π²EI अपॉन L² हो गया। ठीक है, अभी देख लो both in π²EI upon L² both in fixed 4 π²EI upon L², one is fixed and one is free, π²EI upon 4² one is fixed another is free, 2 π² हो गया। रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ रेडियस वेरिएशन देखो, रेशियो में क्या सिलेंडर रेशियो हो जाए। ठीक है, अभी देखो रेडियस वेरिएशन I/A लैम्डा इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस वेरिएशन L अपॉन K मिनिमम। ठीक है, अब सिलेंडर रेशियो क्या हो जाता है तुमको, ये इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ वेरिएशन। शॉर्ट के लिए 32 से कम सिलेंडर से मीडियम के लिए 32 120 और लॉन्ग के लिए 120 से ज़्यादा π²E अपॉन लैम्डा स्क्वायर। क्योंकि बोलते हैं क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस होता है। लैम्डा स्क्वायर इफेक्टिव अपॉन लेडिस π²E अपॉन L इफेक्टिव तो सिग्मा इक्वल टू π²E अपॉन π² होगा। इंटीग्रेशन ऑफ यूलर थ्योरम, इंटीग्रेशन यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम इज वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम, यूलर थ्योरी इज नॉट वैलिड फॉर शॉर्ट कॉलम बिकॉज शॉर्ट कॉलम फेल्स इन क्रसिंग बिफोर बकलिंग ऑफ यूनिट। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ यूलर थ्योरम π/C/A अपॉन πB हो गया। सिग्मा B सिग्मा सिग्मा π²E अपॉन लैम्डा स्क्वायर ये करें तो π²E अपॉन सिग्मा से होता है। रैंकाइन थ्योरी का हो जाए तो 1/PR को 1/PV प्लस 1/P रैंकाइन थ्योरी 1/PR को 1/2 π²E अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, रैंकाइन थ्योरी PR इक्वल टू PC 1 प्लस वो लैम्डा तो 1 प्लस सिग्मा AC प्लस इंटू A प्लस 1 प्लस वो हो गया। रॉट आयरन मोर सर्किल सिग्मा X प्लस सिग्मा Y/2
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ साइन थीटा, ठीक है। टाउ एक्स बाई देखो ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू माइनस साइन थीटा टाइम हो, ठीक है। तो मोर सर्कुलर देखो टाउ एक्स बराबर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। मोर सर्कुलर मार्क पॉइंट ए और बी ऑन द फ्लाइट ए बी एंड बी से यूनाइटेड कोऑर्डिनेट एंड ड्रॉ एक्स एंड वाई नॉर्मली रिप्रेजेंटिंग एम नॉर्मल स्ट्रेस मार्क द कोऑर्डिनेट ए बी ऑन एक्स एंड वाई से जॉइन द पॉइंट ए बी बाय द लाइन एंड वाई से कंबाइंड फोटो एंड कंबाइंड कंबाइंड टॉर्क बेंडिंग टॉर्सन दोनों होता है। बेंडिंग कंपोनेंट फोर्टी से टॉर्क को जो कि होता है एक्स के खिलाफ होता है और वो होता है कंबाइंड जब टी इक्वल टू सिग्मा सिग्मा बी 32 पाई डी टाउ इक्वल टू सिग्मा बी बाई टू को होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। अब ये करेंगे तो 16 पाई डी क्यूब एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। कंबाइंड फैक्टर भी when sharp subject to peer bending develops normal symmetry in by 32 when sharp to sigma x plus sigma y by whole square plus this tau minus sigma 1 minus sigma 2 1 by 2 16 upon pi d cube bracket of m square plus t equivalent देखो tau is equal to 16 t equivalent upon pi d cube 16 to equivalent to pi d cube 16 मतलब वो होता है equivalent body model along maximum normal set equal to normal set body to combination 2 by 2 हो जाएगा half m equal to half m square प्रेशर वेसल देखो प्रेशर फाइन क्लोज में होगा। देखो थीन प्रेशर में तो है डी बाई टू 1 बाई 10 से होता है। अब ठीक मतलब डी बाई टू एक बार कौन से हो गया हुप स्ट्रेस लॉन्जिट्यूडनल से डेटल स्ट्रेस हम देख लो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस एंड हुप स्ट्रेस इन एथेंस लेते क्या होगा था पी डी बाई 40 अपॉन पी डी बाई 2 टी। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज गिवन पी डी बाई 40 और हुप स्ट्रेस पी डी बाई 2 टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन एंड हुप स्ट्रेन का सब लिखा तो 1 माइनस 2 म्यू और 2 माइनस म्यू हो जाएगा। रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेन एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस फॉर सिंपल देखो सिग्मा एल तो पी डी 42 1 माइनस 2 म्यू और हुप स्ट्रेन पी डी बाई 42 2 माइनस म्यू हो जाएगा। सिग्मा एल का सिग्मा 1 माइनस 2 म्यू हो वो यदि फोटो प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा वो यदि फोटो प्रेजेंट वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है 5 माइनस 4 म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2 ये करके पी डी बाई 40 बाई 5 माइनस स्फेरिकल स्फेयर में लॉन्जिट्यूडनल ऑफ सर्कल क्या होता है पी डी बाई 40 पी डी बाई 40 स्टेशन ये पी डी बाई 40 हो गया लॉन्जिट्यूडनल सर्कल पी डी बाई 40 1 माइनस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आता है ई वी इक्वल टू 8 प्लस वाई प्लस इजेड 3 ये होगा 3 पी डी 40 है 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग यूज फॉर द सॉफ्ट लोड एंड इम्पैक्ट लोड, ठीक है। देखो 2 p square r cube upon n upon g d for represent energy due to torque in spring helical spring and this is of the closed coil and u equal to t square l upon 2 g 32 p square l r cube into n upon g d 4 deflection of the spring is directly proportional to cube of radius of coil axial deflection of spring is given by strain energy meter 64 r cube upon p into n upon g d 4 which is the following is the formula of the Stevens g d 4 upon 64 r cube by n spring देखो Stevens का फोर्स ऑन डिफ्लेक्शन p upon 64 r cube हो जाएगा पॉइंट लॉन्ग एक्शन हो जाएगा। सेंट्रिक लोडिंग देखो इसमें ऐसा which is अपनी प्लेस when the center core is the position ये हो जाएगा d by 3। देखो सॉलिड में d by 4 रेक्टेंगुलर में b by 3 d by 3 और d स्क्वायर by d by 3 d by 3